screen and okay, fine. So a quick recap of what we did last day is we introduced collection framework, right? So collection, ठीक है. So collection क्या है? एक interface है, right? So inside this interface we have three major interfaces. What are those? List, set and queue, राइट. लिस्ट के अंदर क्या क्या है, ये इंटरफेस है अगेन. तो लिस्ट में क्या है? एरे लिस्ट, जो हम लोग किए हैं. स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ क्या? ओके, जस्ट अ मिनट. ओह सॉरी. माई स्क्रीन विजिबल? Okay, so we have collection interface and then we have list interface, set interface and queue interface, right? So and queue interface. So we cannot use any interface directly, so we are using some implementation classes, implementing classes. So array list is one of the implementing classes, okay. And one more thing is linked list, right? It is also implementing classes. So last day we have understood what is array list conceptually, and now we are going to do a recap. Though we have completed this a linked list also, but we are going to recap this particular linked list again because our recording were not working somehow. Okay, fine. So how linked list, how the structure of linked list constructed inside Java? It's all memory spaces, right? So we will have some nodes here, right? We'll have some nodes. Again, these nodes are also memories, nothing but memories, okay. It's just virtual structure, it's not actual structure but virtual structure. So inside one node we'll have three compartments, okay, three compartments. So in the middle compartment actual data will be present. In the left compartment, if it is the first node, if it is the first node, suppose, then the address of previous node will be null, right? We learned it, I mean we saw it last day. And the rest of the nodes or the compartments, I mean the last compartment will hold the address of this node, and this compartment will hold the address of this node. In this way these two nodes will be connected, okay. In this way these two nodes will be connected, and so on. If you have n number of nodes, those will be connected like this. So first compartment will hold address of previous compartment, sorry, previous node, and last compartment will hold the address of next node, address of next node. In this way
the nodes will be connected to each other. ठीक है, ट्रेन देखा है ना, ट्रेन टाइप का एक स्ट्रक्चर, ये वर्चुअल स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, it's all virtual structure. So when you are talking about a node, right, a particular node consists of 3 memory spaces, right? ऐसे memory spaces होते हैं ना, छोटे छोटे unit spaces, मतलब unit. Okay, so suppose these 3 unit consist, I mean first node consists of these 3 unit. So in the middle unit the actual data will be held. In the first unit, the first, I mean the address of the previous node will be stored, and at the last unit address of the next node will be stored, like that. Understood? So this way linked list will work. Now when to use linked list and when to use array list? Now let me draw these two structure simultaneously. Okay, so this is our array list. Okay, it's like array, and it is growable in size, right? It is like an array but in growable in size, and a linked list is like this. Now if you see, if we are trying to fetch something, if you are trying to fetch some data, suppose we have thousands of data, I want to fetch 998th data, right? Here 998th data is there. So what it will do, it is a index based, direct index based data structure. Okay, दोनों ही index based है, but look at the structure, it is easy to fetch the data. ठीक है, जैसे array, right? How will you fetch the data? It's just suppose array list name, suppose this is array list dot get, and then 998th, like that you have to fetch. So what it will do, this command will do what? This command will traverse till 999th and then fetch the data. Okay, but think about something, if you want to insert some data here, okay, in between, in the middle of the, let's say middle of the array list, then what it will do, it will again create a bigger array list, right? Bigger array. That is how array list works, right? Always creates a bigger data structure first and then puts one by one data and then puts the required data, and then again after, if you have data after this, then you can, I mean those data will be again copied. In this way, this copy, I mean creating a bigger data structure, creating a bigger array and then copying will take lots of time. So whenever you are trying to insert or delete some element from this array list, it will not be very good option of using array list. Okay, but if you see, if you think about this linked list, okay, linked list, so when you are traversing, so how it is traversing, it is first you are pointing to first node, then it is pointing to the second node by its address, it is reading address from somewhere, then it is pointing to the second node and then again pointing to the third node. Like that, it will take a very large amount of time for fetching the data or traversing the data, traversing the list, array list, traversing the linked list. It will be a large time.
Okay, so there will be performance issue if you are using a big linked list for fetching purpose, data fetching purpose. Okay, but if you are using this linked list to add or delete some data, then it will be beneficial. Why? Because suppose in between you want to delete this particular node, so what you have to do, you have to just link this particular node to the next node, and you have to delink these things. That's it. So that is why when your operation consists of frequent insertion or deletion of data in between, okay, in between, or rather from middle of the data structure, then linked list will be beneficial. Got it? लेकिन जब हम लोग एरे को ट्रेवर्स करेंगे और कुछ डेटा को फेच करेंगे, देन एरे लिस्ट विल बी बेनिफिशियल. इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग. तो array list, linked list is done, and we have also saw okay, we have also saw how to implement array list and how to implement linked list, right, and how to traverse basically using for each loop. Okay, same thing, same like array, but this is the way you can insert some data using dot add method. Okay, dot add method. So question can be they can ask a question like, what is the return type of add method? The return type of add method is boolean. If the addition or if the insertion is successful, then it will return a true code. Okay, true message, not message actually. Boolean is true and false, right? So true will be returned. If insertion is not possible, then false will be returned. Okay, false will be returned. So there are some properties of array list and linked list. So for array list and linked list are unordered list, right? Unordered list means it preserves the insertion order. It preserves the insertion order. It preserves the insertion order. एक second. Okay, so insertion order means, suppose you have added your names like this, Suvam, Pritam, Kushbu. Okay, now you are fetching the data. If you run it, you will get the data in same order as you have entered. This is it preserves the insertion order. This is called preserving the insertion order. Okay, and the same thing for linked list. Okay, it can also accommodate a null value. Null. Okay, so if you print it again, see, you are getting this null here. Duplication is allowed. Okay, duplication is allowed. Suppose I have two null, two Khushbu. As we are inserting the data, it will be printed in the same order. See, so all these things are allowed. I mean, duplication is allowed, a null
value is allowed, everything is allowed. ठीक है. एंड द सेम थिंग फॉर लिंक्ड लिस्ट ऑल्सो. लिंक्ड लिस्ट के लिए दिखाया मैं. इफ यू चेंज इट टू array list, then also it is the same thing, है ना. then also it is the same thing. So these are all properties of array list and linked list. Both are same mostly, but the uses are different. One is for regular, frequent insertion deletion, and one is for traversing. आया समझ में लिस्ट? कोई डाउट? अच्छा, सॉरी प्रीतम, डिड यू से समथिंग? ओके फाइन. ओके, तो और एक टाइप का लिस्ट है, क्लास है, जिसको बोलते हैं वेक्टर. वेक्टर इज नथिंग बट एरे लिस्ट बट सिंक्रोनाइज्ड वर्जन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड वर्जन, राइट, इन आवर प्रीवियस क्लास. So I'll discuss what is synchronization in details if you have interest. It's kind of multi-threading things are not actually required in automation, but if you want to know, I can discuss. Okay, but in later stage. No, Java multi-threading we do not use. But we use in some way. Suppose we have TestNG framework. We are using in that way. Okay, TestNG में वो एक पैरेलल एग्जीक्यूशन का एक प्रोविजन है, बट दैट इज इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग, बट मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं रहता है. But I'll show you how to do multi-threading without using TestNG and all. If you have interest, all depends on your interest. TestNG is different. TestNG is a testing framework. Okay. TestNG internally uses these multi-threading concepts. Yeah, obviously I'll show it during framework design, right, and framework design and execution. But later. Let me first complete the concepts of core Java. Okay, so today will be mostly I'll complete it. ओके फाइन, लेट्स गो टू सेट. लिस्ट समझ में आ गया, अभी सेट. ठीक है, तो सेट मैंने बोला था ऐसे एक स्ट्रक्चर. ठीक है, सेट का स्ट्रक्चर ऐसा है. तुम्हारे पास तुम जब भी बाज़ार मार्केट जाते हो, सब्ज़ी मंडी जाते हो, एक कटोरी तुम्हारे हाथ में थमा देते हैं दुकानदार. तुम उसमें करेला लेते हो, प्याज लेते हो, आलू लेते हो, और जो भी तुम खाते हो, एक्चुअली आई डोंट नो, जो भी है तुम खाते हो तो वो सब ले लिए. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेट ऑफ सब्ज़ी बोलते हैं. ठीक है, सेट ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है, तो सेट मतलब एक कलेक्शन बोल सकते हो, एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप का एलिमेंट्स. क्यों सेम टाइप? क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ तुम मच्छी नहीं खरीद सकते हो, राइट, अंडे नहीं खरीद सकते हो, एक साथ फट जाएगा. खरीद सकते हो लेकिन नॉर्मली नहीं खरीदते हैं, राइट. उसमें दूध नहीं डाल सकते हो. तो सेम टाइप का कलेक्शन एक सेट है, अनऑर्डर्ड थिंग. ओके, मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी था वो सेम सेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है.
Okay, set is again what? Set is again an interface. ठीक है, अभी सेट में जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये देखो, सेट में इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है हैश सेट, ये एक क्लास. ठीक है, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये भी एक क्लास है. और एक टाइप का सेट है जिसको बोलते हैं सॉर्टेड सेट. सॉर्टेड सेट ये एक इंटरफेस है. इसको इम्प्लीमेंट करता है एक क्लास जिसको कहते हैं ट्री सेट. ठीक है, ये एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी. इसमें सिर्फ ट्री सेट है, ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड और सॉर्टेड सेट. ठीक है, ऑर्डर्ड सेट याद रहेगा. सो सेट का जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट. ठीक है, एंड और एक इंटरफेस है इसके अंडर, उसको बोलते हैं सॉर्टेड सेट. एंड सॉर्टेड सेट को इम्प्लीमेंट करता है ट्री सेट. ट्री सेट इज द ऑर्डर्ड सेट अमंग द all the collection things, collection framework. ठीक है, now let's see in the coding. So this is listtut. Let me create another class called settut. सेट्यूट. ओके, सेट कैसे डिक्लेयर करना होता है? सेम एज हमें वो मतलब कैसा कौन सा एलिमेंट तुम स्टोर करना चाहते हो वो तुम दे सकते हो. नहीं अरे क्या, ये सेट्यूट इक्वल टू न्यू हैश सेट. ठीक है, न्यू हैश सेट. नाउ कैसे ऐड करना होता है? सेम सेट्यूट. ओके, इसको एक मेन मेथड में रखते हैं क्योंकि that will be easier for us to understand. And then settut.add settut dot add null. ठीक है, अभी ये एक इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है. कैसे समझेगा तुमको? ऐसे समझेगा. फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन settut डॉट साइज. ठीक है, I प्लस प्लस. ठीक है, इंडेक्स बेस्ड एक फॉर लूप बनाया. नाउ settut system dot out dot println settut dot get. see there is no get. हम लोग लिस्ट में क्या कर रहे थे? गेट कर रहे थे, राइट?
ये गेट मेथड है ना, यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किए थे हम लोग, याद है? तो यहाँ पे वो गेट मेथड नहीं होता है, गेट नहीं होता है, क्योंकि वो इंडेक्स है ही नहीं कुछ, वो तो ऐसे बिखरा हुआ चीज़ें हैं। तो वो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सेट को प्रिंट आउट और रीड करने के लिए, सेट को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर ईच लूप की मदद लेना पड़ेंगे, ठीक है? एंड दिस इज strings name is not good, let's say elements, ठीक है? इधर सिस आउट करोगे एलिमेंट्स, तो तुमको दिख जाएगा ये सारे चीज़ें, ठीक है? अभी देखो इधर जो ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं कर रहा है, हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं कर रहेगा, क्योंकि ये नल लिखा हुआ है, देखो एकदम एंड में मैं नल ये किया था। देन खुशबू, प्रीतम, शुभम, ये एक मतलब कुछ भी ऑर्डर में ये प्रिंट किया है। अभी देख के लग रहा है कि ये रिवर्स ऑर्डर में, हाँ रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है नहीं, वो उसको जो मर्जी है उस वैसे प्रिंट किया है बेसिकली, ठीक है? हाँ, कोई ऑर्डर है ही नहीं इसमें, ठीक है? Ordered list is only tree set, always remember that, okay? If you change it to tree set, क्या हुआ? अच्छा, import करने बोलेंगे। if you change it to tree set, then you will get, see, you will get null pointer exception. So property of tree set is it cannot allow null value. It cannot allow null value. And if we comment it, then you will get, see, Khushbu, Pritam, Suvam. It's dictionary order. It is printing. Okay. Suppose I am printing like this. Okay, dictionary order, C, A, B and C. So it is printing in dictionary order. डिक्शनरी ऑर्डर समझता है ना, डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में रहता है डेटा। तो क्या सीखे हम लोगों ने, हैश सेट जो है वो नल वैल्यू को अलाउ करता है, बट ट्री सेट जो है वो नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। एंड ट्री सेट इज अ ऑर्डर्ड सेट और सॉर्टेड सेट which will be sorted in dictionary order, ठीक है? समझ में नहीं आया तो बताओ। ये मैं ट्री सेट अप्लाई किया, इधर ट्री सेट अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया। हाँ, देखो इस कोड को अच्छे से देखो एंड समझने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। फिर हम लोग सीखेंगे ये फॉर ईच लूप से, तो हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट कर देते हैं, बट वन मोर प्रोसीड्यूर इज देयर, ओके, one more procedure is there to fetch all the data or iterate through this kind of data structure. तो उसको बोलते हैं iterator interface, okay, iterator interface। तो iterator interface बेसिकली कहाँ पे रहता है? अच्छा पहले ये बताओ, ये पूरा क्लियर हुआ ना?
ओके फाइन। तो हम लोग क्या समझा नहीं? वो तो ऑटोमेटिकली होगा, वो तुम्हें क्या करना है? वो तो तुमको ऑटोमेटिकली इधर इधर अगर ये ट्री से हटा दूँ तो क्या होगा, इधर रेड कलर का ये कंपाइलेशन एरर मारेगा। यहाँ पे तुम होवर करोगे, होवर करके क्विक फिक्स में जाओगे, इधर इंपोर्ट ट्री सेट देखो, जावा यूटिल क्लास ऑलवेज, हाँ जावा यूटिल क्लास में तुम इंपोर्ट करो। और अदरवाइज जावा यूटिल के सारे क्लासेस को अगर तुम इंपोर्ट करना चाहते हो तो इधर जावा यूटिल डॉट स्टार कर देना है, लेकिन वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे इंपोर्ट हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब करने का। जैसे जैसे इंपोर्ट आता है वैसे वैसे तुमको इंपोर्ट करना है बस। ये थोड़ी ना कोडिंग के अंदर आता है, कोडिंग तो यहाँ से शुरू होता है क्लास के अंदर। ओके फाइन। अच्छा, और एक चीज़ दिखाता हूँ, इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। देखो अच्छे से देखो। अच्छा, हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे इसका? कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन, राइट, कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन में फर्स्ट इंटरफेस बोला था, लेकिन इस इंटरफेस के ऊपर भी और एक इंटरफेस है, मतलब कलेक्शन इंटरफेस इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको बोलता है आइटरेबल, आइटरेबल, so that all the interfaces can be iterated through iterable interface, ठीक है। कलेक्शन इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है आइटरेबल इंटरफेस को, ये फर्स्ट इंटरफेस है। उसके बाद फिर वो लीफ सेट क्यू ये सब कुछ है। आइटरेबल, यस आइटरेबल, ठीक है। ये आइटरेबल इंटरफेस से मतलब इसका मतलब है कि द कलेक्शन फ्रेमवर्क कैन बी आइटरेटेड, कलेक्शन वॉट एवर डेटा स्ट्रक्चर यू आर क्रिएटिंग दैट कैन बी आइटरेटेड, ठीक है। सो जैसे हम लोग, ये मैं यूज़ दिखाता हूँ इसका, जैसे हम लोग इसको फॉर ईच लूप करके लूप लेके मैं इसको प्रिंट किया, राइट, दिस वन, let me comment this, and we have another method, iterator, ठीक है, iterator इंटरफेस, जावा यूटिल से आइटरेटर इंटरफेस को तुमको लेना है। देन आइटरेटर ऑफ व्हाट, किस में करना है? स्ट्रिंग ऑफ, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है स्ट्रिंग है ना, ITR इक्वल टू, हमारा सेट का नाम क्या है? सेट्यूट, सेट्यूट डॉट आइटरेटर, ठीक है। ये एक हम लोग आइटरेटर इंटरफेस को सेट ट्यूट के ऊपर अप्लाई किए, सेट ट्यूट जो सेट हम लोग बनाए वो उसके ऊपर हम लोग ये आइटरेटर मेथड, आइटरेटर को अप्लाई किए, ठीक है। नाउ अभी वाइल लूप की यूज़ होंगे, वाइल कंडीशन, वाइल ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट, ठीक है। हैज़ नेक्स्ट मीन्स इसके बाद कोई डेटा है तो हम लोग बोलेंगे व्हाट, सिस आउट ITR डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करे। सी वाइल लूप में हमेशा एक इंक्रीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। सी दिस नेक्स्ट इज ऑल्सो वर्किंग एज इंक्रीमेंटेशन। suppose this is my data structure, sorry,
दिस इज माई डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज माई डेटा स्ट्रक्चर. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, सेट हो, लिस्ट हो, कोई भी हो. सपोज दिस इज माई डेटा स्ट्रक्चर. सो ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा? नेक्स्ट मेथड विल फर्स्ट प्रिंट दिस वन, then it will automatically go to this one, again print this one, then automatically go to this one. Okay, so ये इंक्रीमेंटेशन की भी काम कर रहा है, इंक्रीमेंटेशन भी हो रहा है यहाँ पे. तो इफ यू रन इट, see, you are getting all the data, all the details as for loop. So there are two ways. One is using iterator interface, another is using for each method, for each for loop, actually for each loop. बोलो. आइटरेटर एक इंटरफेस है, ठीक है, जो आइटरेट करता है कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को, वेदर इट इज लीस्ट, सेट, कोई भी क्यू. क्योंकि वो जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है उसका नाम है आइटरेबल. सो इनिशियली ये सिर्फ आइटरेटर से ही इनकी मतलब आइटरेट होता था और रेदर फेच होता था डेटा. बाद में ये फॉर ईच लूप आया, बहुत बाद में. ओके, तो ये आइटरेटर मेथड और आइटरेटर यूजिंग आइटरेटर इज बिट ओल्ड प्रोसेस, ठीक है. तो ये बेसिकली द सेम थिंग. आइटरेटर विल आइटरेट ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. जैसे फॉर ईच लूप में होता है, वो क्या होता है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है, राइट. तो आइटरेटर मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका सिंटैक्स ये है, ये आइटरेटर इंटरफेस, दिस इज द आइटरेटर इंटरफेस. नाउ विच टाइप ऑफ डेटा यू हैव इन द डेटा स्ट्रक्चर और सेट, इट इज स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाए हैं, राइट. सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाए. सो आइटरेटर स्ट्रिंग वाला आइटरेटर को हमें लेना पड़ेगा. देन इट इज़ अ वेरिएबल, हम लोग कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो. देन सेट्यूड मीन्स हमारा जो सेट है वो लिया मैंने डॉट आइटरेटर. डॉट आइटरेटर मतलब उसमें मैं आइटरेशन करूँगा, ये मैं बताया जेवीएम को, उसको मैं आइटरेट करूँगा, ये जेवीएम को मैं बताया. नाउ व्हाट, सब कुछ तैयार हो गया. नाउ हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई नेक्स्ट वैल्यू भी है, इसके ये आइटरेट करने की के लिए काबिल भी है और नॉट. सो आईटीआर डॉट हैज़ नेक्स्ट इज द कमांड फॉर दैट. इट इज चेकिंग इफ इट इज हैविंग मोर देन वन एलिमेंट और मोर देन जीरो एलिमेंट, रदर मोर देन जीरो एलिमेंट, ठीक है, कोई नेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं. तो ये हैज़ नेक्स्ट, इफ इट इज true, then it will print that element and go to the next element. Print that element and go to the next element. That is itr.next का function. ठीक है. Any question on set? आइटरेशन. अच्छा, सेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सेट कैनॉट अलाउ डुप्लीकेशन. सपोज आई हैव डुप्लीकेट वैल्यूज हियर, सेट, ठीक है, बट इफ यू रन इट you will get this Khushbu name only once, because this Khushbu is actually overridden by this Khushbu, the last one. ये एक ओवरराइड हो रहा है. तो सेट में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर से डुप्लीकेशन हटाना हो तो उसको सेट में डाल दो, ठीक है.
उसको सेट में डाल दो। सपोज एक तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स है, ठीक है, उसमें से तुम्हें हटाना है, डुप्लीकेट नेम्स को हटाना है, डुप्लीकेट नेम्स वो वंस ही रखना है, डुप्लीकेट नेम्स को हटाना है, तो उसको सेट में, उस लिस्ट को कन्वर्ट कर दो सेट में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स जो है वो हट जाएंगे। गॉट इट? सीरियसली समझ में आ रहा है ना? डिलीट क्या करोगे? कैसे? अरे तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें ऐड करने के लिए थोड़ी ना आएगा, तुम्हारे पास एक जंक डेटा आएगा, ऐसे थोड़ी ना चार्ट डेटा तुम ऐड करके रखोगे। तुम्हारे पास एक जंक डेटा है, लिस्ट ऑफ डेटा है, उसको तुम डेटाबेस से या फिर कहीं से लेके आए हो लिस्ट में। अभी लिस्ट में दिख रहा है बहुत सारे डुप्लीकेट एरर है, डुप्लीकेट नेम्स है, हाँ, तो वो कितना डिलीट करोगे तुम बैठे बैठे? तो उससे अच्छा है उसको सेट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट को कन्वर्ट कर दो सेट में, और लिस्ट का जो डेटा है सेट में डाल दो, वो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएंगे। इजी। तो ये लिस्ट एंड सेट ये हुआ, ठीक है। अभी दूसरा और एक है जिसको बोलते हैं क्यू, लेकिन वो क्यू हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, तो आई एम ओमिटिंग द क्यू। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम इंटरनेट, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन क्यू, बिकॉज मैंने मेरे 11 ईयर्स के एक्सपीरियंस जो भी है करियर में, कभी भी वो क्यू का ये नहीं किया, यूज़ नहीं किया ऑटोमेशन में, और रेदर कोडिंग में, नॉट ओनली ऑटोमेशन, इवन कोडिंग में भी क्यू का कभी यूज़ नहीं किया। तो वी कैन, हाँ, क्यू क्यू ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये दो, लीस्ट एंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू टेल दैट व्हाट आर द interfaces present. It is least queue and set, don't omit queue, okay, but queue we do not use, okay, fine। जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क है, हम लोग समझे ऐसे कलेक्शन फ्रेमवर्क, वैसे एक टैब्यूलर फ्रेमवर्क है, ओके। एक टैब्यूलर फ्रेमवर्क मीन्स ऐसे की वैल्यू पेयर में, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। तो की सपोज फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज देयर विल बी की कुड बी सपोज आई हैव नेम सुवम, राइट, खुशबू, and Pritam. My roll number is roll number 1, your roll number is roll number 2, Pritam's roll number is roll number 3. So, the data is stored in key value pair in such way that using the key we can fetch the value. Using the key we can fetch the value. This particular concept or entity, it is a separate entity than collection framework, okay. This entity is called map, which is again an interface. Map always stores data, or this is a data structure which stores data in key value pair, such that you can access data or access value using the key, ठीक है। आया समझ में? यस, नो, राम, गंगा?
ये क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, राइट। एरे लिस्ट, ऐसे लिंक्ड लिस्ट, राइट। ये सब क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब समझ रहा है ना, एक वन डायमेंशन, ठीक है। एक एक डायमेंशन मतलब कैसे बताऊँ, ये एक मतलब एक के बाद एक ऐसा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसको जो डेटा स्टोर करता है ऐसे, टेबुलर। टेबल पता है ना, टेबल, टेबल ऐसे चार्ट टाइप का हम लोग नहीं बनाते टेबल। तो इसमें रहता है की, इसमें रहता है वैल्यू। तो की सपोज तुम्हारा नाम क्या है, प्रीतम, ठीक है। और तुम्हारे कभी अटेंडेंस शीट देखे हो, स्कूल का अटेंडेंस शीट 1, ठीक है। सपोज हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ओके। आई मीन माई हिंदी इज़ बैड बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो सपोज क्लास में टीचर आया, ठीक है। क्लास में टीचर आया और रोल नंबर 1, कौन कौन रिस्पॉन्ड करेगा। रोल नंबर 1 ऐसे पुकार, मतलब ऐसे बोलते थे ना, प्रीतम रिस्पॉन्ड करेगा। रोल नंबर 3 खुशबू रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। क्लास में होता था, क्लास में ऐसे अटेंडेंस लेते थे ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो कैसे होता था, क्योंकि रोल नंबर 1 सपोज की है, उस की, वो की जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड टू प्रीतम, ठीक है। रोल नंबर 1 इज अप्लाइड फॉर प्रीतम, इज द की इज द आइडेंटिफायर ऑफ प्रीतम, रोल नंबर 1। रोल नंबर 2 की, दिस की इज आइडेंटिफायर ऑफ शुभम। रोल नंबर 3, दैट की इज आइडेंटिफायर फॉर खुशबू, ठीक है। तो रोल नंबर 3 जब भी कोई बोलेंगे तो खुशबू शुड स्टैंड एंड से प्रेजेंट प्लीज, करेक्ट। So this is called, we are fetching value using key. We are fetching value using key, ठीक है। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये करता है मैप, ठीक है। मैप, मैप एक इंटरफेस, मैप इंटरफेस स्टोर्स द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर, ओके। नाउ मैप अगेन इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस चाहिए। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है वो है हैश मैप, ठीक है, एंड लिंक्ड हैश मैप, सेम एज आवर सेट लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। अगेन दिस क्लास एंड it is sorted map, and sorted map will be implemented by tree map, which will be, again tree map is sorted map or ordered map, and sorted by the key order, okay। की का जो orders है वैसा। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है मैप। ओके, collection tute, let me create another package, it's a map tute। इसको लेके आता हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर में, कहाँ पे, मैप ट्यूट में जाके मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉल्ड maptute.java, ठीक है। नाउ मेन मेथड, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे देखो,
कैसे मैप को डिक्लेयर करते हैं। मैप कैसा डेटा लेता है ये, की एंड वैल्यू पेयर। सपोज मेरा की है, की जो है वो इंटीजर है एंड वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड मैप को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, अच्छा ये शायद ऐसे होंगे। ओके, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ हैश मैप, ठीक है, हैश मैप। ओके फाइन, सो गो टू मैप, क्विक फिक्स, इंपोर्ट मैप फ्रॉम जावा यूटिल। जावा यूटिल पैकेज से ये सारे कलेक्शन एंड मैप को इंपोर्ट करना है। नाउ इफ यू सी द मैप टेक्स टू वैल्यूज, वन इज की, अनदर इज वैल्यू। Okay, two arguments, one is key, another is value. So how to declare it, map dot add, sorry यहाँ पे add नहीं, हाँ put, ठीक है। अभी integer की, suppose this is 1 and value let's say Subham, ठीक है। in the same way we'll put here Pritam's name and here Khushbu's name, ठीक है। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे फेच करना है। कैसे फेच करें, sys out map dot get. Okay, now see get, if you see this, see get object key, you have to provide the key. Key means suppose I am printing, I'm getting the 1, okay, I am putting the 1 as key, okay। तो क्या प्रिंट करेगा, मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए, सी शुभम इज प्रिंटेड। सो बाई की वी आर फेचिंग द वैल्यू एंड प्रिंटिंग इट, गॉट इट। ओके, ना इसको आइटरेट कैसे करें, मैप को आइटरेट कैसे करें। उधर तो ऐसे एलिमेंट करके हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो की वैल्यू अलग अलग है ना, वो कैसे करें। ये देखो वो करने का तरीका है। फॉर कुछ समझ में नहीं आया, आ रहा है ना। मैप को कैसे करें, मैप तो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको ऐसे फॉर लूप में कैसे लेके आए, राइट। तो फॉर लूप में लेके आने के लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू,
ये जो मैप है ना, मैप को हमें डायरेक्टली सेट में कन्वर्ट करना है। मैप को हमें डायरेक्टली सेट में कन्वर्ट करना है, मतलब की वैल्यू पेयर एक एलिमेंट है, की वैल्यू पेयर अगेन सेकेंड की वैल्यू पेयर और एक एलिमेंट है, थर्ड की वैल्यू पेयर और एक एलिमेंट है। तो पूरे जो मैप है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग सेट में, एंड देयर वी आर आइटरेटिंग एंड फॉर एंड दिस इज अ सिंटैक्स फॉर दैट। एंट्री एक जावा यूटिल मैप का एंट्री एक इंटरफेस है, ठीक है। एंट्री क्या करता है, एंट्री इस मैप को आई मीन जो भी सपोज इसको ये टोटल चीज़ को टोटल जो की वैल्यू पेयर को एक एलिमेंट तुम पकड़ रहे हो, ठीक है। उसका जो डेटा टाइप ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग और इंटीजर नहीं होगा, वो एक पेयर है ना, वो एक पेयर है, वो कोई भी स्ट्रिंग या इंटीजर नहीं होगा स्टैंड अलोन। तो उसको वो पेयर को बोल रहा है एंट्री, उसका जो डेटा सेट डेटा टाइप है उसको सेट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड उसका जो एक एक एलिमेंट कन्वर्ट होने के बाद एक एलिमेंट का जो डेटा टाइप होगा वो एंट्री टाइप डेटा टाइप। ये देखो ये मैप एंट्री की वैल्यू पेयर, ठीक है। अ मैप एंट्री इज की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर एक सपोज एक टाइप ऑफ डेटा और डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग इंटीजर है, एंट्री एक इंटरमिटेंट डेटा टाइप पकड़ लो, ठीक है। वो बाद में काम पे नहीं है। राइट एंट्री मीन्स सी हम लोग कैसे कर रहे थे यहाँ पे, सेट को कैसे आइटरेट कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, राइट। क्योंकि इसका जो कंटेंट था वो स्ट्रिंग है सेट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक पेयर है। पेयर का क्या डेटा टाइप होता है, कुछ डेटा टाइप नहीं होता है। ये इंटीजर एंड स्ट्रिंग का पेयर है, तो वो एक कॉमन डेटा टाइप कोई अभी देखो, अभी इसका जो की वैल्यू का जो डेटा टाइप्स है वो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, राइट। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। डबल इंटीजर हो सकता है, इंटीजर डबल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो उसके लिए कॉमन डेटा टाइप इस पेयर को असाइन किया जावा ने, जिसको बोलते हैं एंट्री, ठीक है। ये इंटरमिटेंट, ये बाद में जाके तुमको अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, अभी ये नॉर्मल सेट की तरह बिहेव करेंगे। नॉर्मल सेट जैसे है, अभी ये नॉर्मल सेट को अभी हम लोग आइटरेट कर रहे हैं। तो मैप डॉट एंट्री सेट एक्चुअली कन्वर्टिंग this map dot entry set actually converting map to a set। ओके, सो अभी नॉर्मल सेट जैसे हम लोग फॉर लूप पे चलाए। नाउ अभी जब भी तुम एंट्री डेटा टाइप में, क्या एंट्री डेटा टाइप में तुम कुछ काम का नहीं है। एंट्री डेटा टाइप उसका की है अलग, वैल्यू है अलग। सो मैप डॉट आई मीन मैप एलिमेंट जो भी तुम्हारा ये वेरिएबल है डॉट गेट की एंड गेट वैल्यू करके उसका की एंड वैल्यू पेयर को तुम अलग कर सकते हो, एंड यहाँ पे वो फेच कर सकते हो प्रिंट, जैसे मैंने प्रिंट किया। सी की 1 इज शुभम, की 2 इज प्रीतम, की 3 इज खुशबू। देखो हाँ, ये देखो ना, की में की 1 2 3 दिया है ना। तो यहाँ पे गेट की मतलब की को गेट कर रहा हूँ मैं, मैप एलिमेंट गेट की कर रहा हूँ, मैप एलिमेंट गेट वैल्यू कर रहा हूँ। मतलब की मतलब ये होगा, वैल्यू मतलब शुभम होगा। की मतलब ये, वैल्यू मतलब प्रीतम। की मतलब 3, वैल्यू मतलब खुशबू। लाइक दैट इट विल प्रिंट। ओके, तो ये थोड़ा सा समझ लो और बाकी रट्टा मारना पड़ेगा। ये सिंटैक्स और कुछ नहीं कर सकते हो। ये जावा सिंटैक्स है टू कन्वर्ट set, I mean map to set, and then assigning some variable entry type variable to the pair.
और थोड़ा समझा दूँ कि ये समझ में आया क्या, या फिर लेट मी ट्राई इन अदर वे? देखो मैं समझाता हूँ, रटना नहीं पड़ेगा। देखो लेट मी ट्राई सम अदर वे। ये देखो हमारा जो मैप का जो स्ट्रक्चर क्या था, की वैल्यू पेयर, राइट? 1 शुभम, 2 प्रीतम, 3 खुशबू। ठीक है, ये दो पेयर को एक सेट का एक एलिमेंट बना रहा हूँ, ये दो पेयर को सेट का एक एलिमेंट बना रहा हूँ, इस दो पेयर को सेट का एक एलिमेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, ठीक है? इस सेट में मुझे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। नाउ अभी ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप इसका तो कुछ भी हो सकता है ना। ये स्ट्रिंग है, अभी ये इंट है, ये स्ट्रिंग ये इंट हो सकता है, या फिर ये इंट ये स्ट्रिंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी देयर। तो इसको एक इंटरमिटेंट डेटा टाइप असाइन कर रहा है जावा, जिसको बोलते हैं एंट्री। ठीक है, एंट्री। तो ये एंट्री टाइप जो है ना, एंट्री टाइप जो वेरिएबल्स है वो जाके ये सेट में जमा हुआ, राइट? ना अभी सेट को कैसे हम लोग ये करते हैं, सेट को हम लोग फॉर ईच लूप से आइटरेट करते हैं। क्या है वो सेट का जो डेटा टाइप, सेट का जो डेटा टाइप क्या है? अभी है एंट्री, करेक्ट? सेट का डेटा टाइप क्या है? अभी एंट्री है ना, ये सेट ऑफ एंट्री, राइट? ये सेट ऑफ एंट्री। नाउ यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल दिया, जैसे फॉर ईच लूप में देते हैं मैप एली। हाँ, अभी ये जो मैप को जो सेट में कन्वर्ट करेगा वो है एंट्री सेट, एंट्री सेट मेथड। ठीक है, ये हो गया फॉर लूप। अभी क्या है यहाँ पे सीस आउट स्टेटमेंट, मैप एली डॉट गेट की एंड मैप एली डॉट गेट वैल्यू, दो मेथड है। आया समझ में? ओके फाइन। सो ये हम लोग जो देखे हैं वो है हैश मैप। ठीक है, लेट्स सी हैश मैप में नल वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, नल वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। लेट्स से इंस्टेड ऑफ खुशबू, लेट्स से इट्स नल। बाय द वे नल इज नथिंग, नल मीन्स नथिंग। ठीक है, नल की ऑलवेज यूनिक। ओके, की वैल्यू की जो है ये ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। लेट्स सी इफ इट इज रनिंग। सी null value is allowed. Now null key is allowed. Yes, null key is also allowed. See, null got it? Null value, null key एक allowed. Let's say, let me put another way. I have two null value but one null key. ठीक है, is it allowed? It is also allowed. So any number of null value is allowed. Okay, only one null key is allowed because anyway key cannot be duplicate. की अगर डुप्लीकेट होगा तो वो डुप्लीकेट की में जो लास्ट वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगा। जो लास्ट वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगा, वो वैल्यू से एक्चुअली ओवरराइड हो जाएगा। ओके, so null key, null value both are allowed in hash map.
व्हाट अबाउट ट्री मैप? ट्री मैप, व्हाट अबाउट ट्री मैप? ट्री मैप में क्या करना है? ट्री मैप में हम लोगों को नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे मिल रहा है? वो है नल की के लिए मिल रहा है। सो नल की इज नॉट अलाउड, नल वैल्यू इज अलाउड, ठीक है। null key is allowed, sorry, null key is not allowed but null value is allowed for tree map, very important। और एक टाइप का मैप सेम स्ट्रक्चर है, जब भी मैप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जावा 1.4 में, ठीक है। जावा 1.6 से मैप है, जावा 1.4 में एक डेटा और ऐसे ही एक टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको बोलते थे हैश टेबल, ओके। तो हैश टेबल जो है वो लीगेसी क्लास है फॉर मैप इंटरफेस। लीगेसी क्लास मतलब पुराना क्लास मैप में बाद में आके इंट्रोड्यूस हुआ, गॉट इट? मैप में बाद में आके इंट्रोड्यूस हुआ पुराना क्लास। तो हैश टेबल जो है उसमें नल की नल वैल्यू दोनों अलाउड नहीं है, नल की नल वैल्यू दोनों अलाउड नहीं है। देखोगे, देखो हैश टेबल, हैश टेबल, ठीक है। अभी इसको मैं रन करूं तो सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन बन रहा है? देखो नल वैल्यू अलाउड नहीं है। नल की अलाउड है क्या? नल की भी अलाउड नहीं है, राइट। कहाँ पे हो रहा है ये? जावा 15 लाइन नंबर 15 में दे रहा है। उससे पहले कहाँ पे दे रहा था? लाइन नंबर 16 में दे रहा होगा। तो null value and null key is not allowed. So suppose I don't have these things, right? See 3 2 1 जो हैश टेबल है वो इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में, की का जो रिवर्स ऑर्डर है उससे वो प्रिंट करता है 3 2 1, ओके ना। ये अगर ट्री मैप होता, ट्री मैप, ठीक है। अभी ट्री मैप होता है तो देखो 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डरिंग है वो रिवर्स है। ट्री मैप इज ए सॉर्टेड मैप, हैश टेबल इज ऑल्सो सॉर्टेड, हैश टेबल इज ऑल्सो सॉर्टेड बट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके फाइन, बोलो। तो हो गया सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क एवरीथिंग। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन जो है एक इंटरफेस है और कलेक्शंस जो है वो एक
क्लास है कलेक्शन। सी, कलेक्शंस इज अ क्लास, कलेक्शन इज एन इंटरफेस, कलेक्शंस इज ए क्लास। ठीक है, अभी कलेक्शंस के पास ये एक स्टैटिक, बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स है, जैसे एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी मैप, एम्प्टी सेट, मतलब जो भी एलिमेंट्स उस मैप के अंदर, लिस्ट के अंदर या फिर सेट के अंदर है उसको डिलीट कर सकते हो। रिवर्स, तुम रिवर्स ऑर्डर में सपोज ये करोगे, प्रिंट करोगे, क्या करोगे, इधर रिवर्स को इधर एक लिस्ट बना सकते हो, राइट, लिस्ट बना के कर सकते हो, या फिर मैप का भी होगा शायद से, देखता हूँ, मैप का नहीं होता है रिवर्स। ठीक है, मैप का वैसे ही हैश टेबल से करना पड़ता है। तुम्हें, तुम्हारे पास अगर कोई लिस्ट है तो ये लिस्ट से तुम उस लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। सपोज लिस्ट, लेट्स से दिस इज इंट, int list equal to new array list। ठीक है, now this list, sorry, int list dot add one, now put some 2 3 4, sorted। okay, this should be integer। okay, integer class, integer एक क्लास है, वो डेटा टाइप नहीं। तो इस लिस्ट को अगर तुम यहाँ पे डालो इन इन लिस्ट, ओके, एंड sys out, rather for each, sys out sys out तो ये क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। सी 4 3 2 1 ऐसे आया है ना। इसका ये तो रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या है, नॉर्मल जो एरे लिस्ट है वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, उसको तुम रिवर्स कर रहे हो कलेक्शन डॉट रिवर्स मेथड कॉल करके। ठीक है, नाउ सी कलेक्शंस डॉट, ये एम्प्टी लिस्ट भी कर सकते हो। अभी देखो एम्प्टी लिस्ट किया मैंने और ये एरे लिस्ट कुछ प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, प्रिंट हो रहा है क्या, कहाँ पे प्रिंट हो रहा है लेकिन, कलेक्शंस डॉट, ओके, एम्प्टी लिस्ट का तो नाम ही नहीं दिया मैंने। क्या हुआ ये एम्प्टी लिस्ट मैं देखता हूँ बाद में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, रिवर्स का समझा ना। अभी देखो ये ऐड ऑल मतलब सपोज एक तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एक लिस्ट सेट और क्यू है, ठीक है, तुम और लिस्ट सेट और क्यू और एक इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे ऐड ऑल है। कॉपी कर सकते हो, मैक्स एंड मीन निकल सकते हो, वैल्यू मैक्स एंड मीन निकल सकते हो। ठीक है, सपोज कलेक्शन ऑफ मैक्स, राइट, मैक्स इंट लिस्ट, इसमें मैक्स वैल्यू क्या है वो तुमको दिखा देगा। if you run it,
सी फोर इज द मैक्सिमम वैल्यू। अभी एक साथ ही प्रिंट हुआ है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी पुट सम what some strings here. Star or the max value is ठीक है। सी द मैक्स वैल्यू इज 4। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जो जिससे तुम कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेसेस के अंडर जो भी इंटरफेसेस है और जो भी मैप इंटरफेस है, ओके, जो भी एंटिटीज है उसको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। कलेक्शंस इज अ क्लास, using the collections class methods we can manipulate the collection framework or collection entities, right? List, set, queue and here map, ठीक है। collection मतलब map is a separate entity but still collections class collections class method are also built for map interface also. Got it? Collections is a class, collection is an interface, always remember it. Collections is a class, collection is interface. एंड में एस रहेगा तो क्लास है, एंड में एस नहीं रहेगा तो इंटरफेस है, ठीक है। अभी तुम लोगों को एक प्रोग्राम देता हूँ, लिखो दोनों, मैं नहीं बोलूँगा, कैसे प्रैक्टिस की हो देखूंगा मैं, एरे के ऊपर। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? अच्छा, लेट्स सी एरे नहीं, हाँ ठीक है। हाँ क्या? नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट खुद करना पड़ेगा, खुद नहीं करोगे तो समझेगा नहीं, खुद करना पड़ेगा। कहाँ गया प्रैक्टिस सेट? हाँ, सपोज प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एक पैटर्न प्रिंटिंग, इजी, वेरी इजी पैटर्न प्रिंटिंग देता हूँ, देखता हूँ कैसे करते हो, ट्राई करो। स्टार स्टार स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, फोर्थ लाइन में 4 स्टार, ठीक है। इसको करना पड़ेगा तुम, ठीक है। ये प्रिंट करो, कैसे करोगे देखो। समझा ना? ऐसे करना है, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये दोनों छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल स्टार से प्रिंट करो। कैसे करोगे? यहाँ पे डायरेक्ट मेन मेथड को तुम डिक्लेयर कर सकते हो। ये यहाँ के मतलब इसके अंदर ही करो, यूजिंग फॉर लूप्स। सोचो। गूगल सर्च मत करो, हाँ, खुद सोचो थोड़ा सा। मैं वैसे भी दिखाने वाला हूँ, बट सोचो कैसे करने वाले हो।
सपोज यहाँ पे एक इंटीजर ले लो, लाइन्स ऑफ स्टार प्रिंटेड, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंट लाइन्स हाँ इक्वल टू 5, अप टू 5 लाइन्स तुम प्रिंट करो, ठीक है। कैसे प्रिंट करोगे बताओ। एनी आइडिया? हाँ हम्म ये लाइन 5 है ना, ये इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया। 5 लाइन तक तुमको प्रिंट करना है। करो करो, खुद करो, गूगल सर्च मत करो, खुद करने की कोशिश करो। कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं किया तो भी चलेगा, मैं दिखाऊंगा, बट ट्राई करो। होगा क्या? ये देखो, हमें क्या 5 लाइन प्रिंट करना है, राइट। 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन के लिए हम लोग एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, राइट। इंट आई
equal to 0, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस। ठीक है, ये एक फॉर लूप हो गया। इससे क्या होगा, 5 लाइन क्रिएट होगा। नाउ देखो, फर्स्ट लाइन में एक, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, ऐसे करके प्रिंट हो रहा है, राइट। एक लाइन में कितने स्टार्स है, 1, एक फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, ऐसा है ना। तो वो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर, और एक लूप लेना पड़ेगा, int j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू I, क्योंकि फर्स्ट लाइन में एक ही प्रिंट होगा, राइट, सेकेंड लाइन में 2 प्रिंट होगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू I j प्लस प्लस। ठीक है, हो गया। नाउ हियर हमें प्रिंट करना पड़ेगा, आजू बाजू में प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट एलन विल प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट विल, आई मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विल प्रिंट लाइक दिस, समझा। यहाँ पे मैं सीस आउट ही करूँगा, लेकिन ये एलन को डिलीट कर दूंगा, एलन डिलीट, जस्ट जे को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, जे को, सॉरी जे नहीं, स्टार प्रिंट करूँगा, राइट, स्टार प्रिंट करूँगा। और स्टार प्रिंट करूँगा कैसा, स्टार प्रिंट करने के बाद, अच्छा फिलहाल स्टार को प्रिंट किया मैंने। नाउ जब एक लाइन प्रिंट हो गया, एक लाइन प्रिंट हो गया, फिर मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, राइट। दिस फॉर लूप इज फॉर राइटिंग, और दिस फॉर लूप इज फॉर प्रिंटिंग ओनली 1 लाइन, ओके, ओनली सिंगल लाइन्स, बट उसको नेक्स्ट लाइन में लाना है ना। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना, ब्लैंक रख दो, प्रिंट एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एलन, ऑलवेज रिमेंबर, एलन मीन्स नेक्स्ट लाइन, प्रिंट मीन्स आजू बाजू में प्रिंट करेगा सब, ठीक है। तो ये 5 नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको लाइन, राइट, ऑलरेडी हम लोग लेके रखे हैं। ओके, लेट्स रन इट, सी, ऐसा ही एक प्रिंट हुआ है। तो इसको अभी थोड़ा सा स्पेस वेस देके थोड़ा सा अच्छा दिखने में हम लोग कर सकते हैं, सी, ऐसा हुआ क्या। एनालिसिस करो, एक एक वैल्यू लो इस फॉर लूप में और उसको एनालिसिस करो स्टेप बाय स्टेप। करोगे ये, फिर मैं कराऊँ, मतलब मैं सिखाऊँ कैसे करना है। Outer for loop is for printing the next line, I mean all the lines, and inner for loop is for printing the line elements. करो, खुद करो, ना देख के खुद करो, देखो। आउटर फॉर लूप इज फॉर लाइन प्रिंटिंग, कितना लाइन्स है, 5 लाइन है तो 5 बार उसको आइटरेट कर। इनर इज फॉर लाइन का जो एलिमेंट्स है आजू बाजू में प्रिंट करने वाला, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में थर्ड स्टार, 3 स्टार्स, ऐसे। तो ये 3 स्टार्स को कैसे, मतलब एक बॉक्स ये करो, सपोज एक बॉक्स है हमारे पास, हाँ, इस बॉक्स में हमारे पास ऐसे ये है। अभी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार्स, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स, ठीक है, फोर्थ लाइन में 4 स्टार्स, ठीक है, फिफ्थ लाइन में
फाइव स्टार्स, ठीक है, ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये आउटर लूप से हम लोग कर रहे हैं। और ये जो है ये जो प्रिंट कर रहे हैं हम लोग एक एक लाइन के लिए, ईच एलिमेंट्स को। हाँ, ये कॉलम्स प्रिंट करने के लिए है, ये रो प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर रो and this is for column. Okay, this for loop is for column, and this is for next line, going to next line. हुआ क्या? देख देख के लिख रहे हो फिर भी एरर कैसे दे रहा है तुमको? देखो ठीक से, देखो ठीक से, देखिए देखिए कर।
और एक करना है ऐसा, या फिर यू नीड सम टाइम फॉर फॉर लूप। कल कल ये फॉर लूप वगैरह जो भी है ना, फॉर लूप एंड एरे, ठीक है, अच्छे से देख के रखो। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में, पूछेंगे। हाँ, पैटर्न्स पूछते हैं ना, और ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ पैटर्न्स मैं कराऊंगा। एवरीथिंग, सब कुछ कराऊंगा मैं, डायमंड शेप भी कराऊंगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं कराने वाला हूँ, अभी कराने वाला हूँ। तुम लोग अगर ओके नहीं हो तो कल करूँगा, ठीक से बोलो। वही तो बोला मैं, फॉर लूप अच्छे से करके आओ, फॉर लूप, ठीक है, और एरे, ये दो दो चीज़ अच्छे से करके आओ। देखो, एक रूल है, ठीक है, रूल ऐसा है कि हमें जो प्रिंट करना है ना, हमें जो प्रिंट करना है ऐसा करना है। हमें सोचना जो है, मेमोरी स्पेस को जैसे सोचना है ऐसा है। वाह, वेट 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 वेट, रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ फिर। देखो, हमारा जो मेमोरी स्पेस है ऐसा है, राइट, और रैदर जो डिस्प्ले फील्ड है वो भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। नाउ सपोज मैं अभी लेफ्ट अलाइन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पे ऐसे 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 किया, राइट। हाँ, अच्छा, मैं अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों बाजू सेम है ऐसे, तो वो कैसे प्रिंट होगा? हमें प्रिंट हमेशा करना जो है वो है ऐसे स्क्वायर टाइप का प्रिंट होता है, ठीक है। बाद में हमें ऐसे, यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो है स्पेस, नॉर्मल स्पेस, देन यहाँ पे नॉर्मल स्टार, यहाँ पे अगेन स्पेस दो, देन 3 स्टार, यहाँ पे एक स्पेस, देन 4 स्टार, ऐसे प्रिंट करना होता है, एंड देन यहाँ पे अगेन ब्लैंक प्रिंट करना होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर डायमंड ट्रायंगल करना है तो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल तुमने किए, यहाँ पे और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में और एक ट्रायंगल बनाना है, फिर हो गया तुम्हारा डायमंड, ठीक है। ऐसे ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा। तो तुमको जो सोचना है ऐसे स्क्वायर शेप का सोचना है, स्क्वायर शेप का सोच के फिर यहाँ तक तुमको प्रिंट क्या करना है, यहाँ तक तुम्हें ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना है, देन तुम स्टार प्रिंट करोगे, देन अगेन ब्लैंक स्पेस, मतलब ये जो हाफ है इसको तुम्हें ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना है, ये जो पोर्शन है ब्लैंक स्पेस, ये जो पोर्शन है ब्लैंक स्पेस, अगेन ये जो पोर्शन है ब्लैंक स्पेस, बाकी जो है वो स्टार प्रिंट करो। आया समझ में कैसे कॉन्सेप्चुअली इसको तुम मतलब फिट कर सकते हो? ट्राई करो, ठीक है। अब मतलब थोड़ा एनालिसिस करो, सोचो, रात भर मतलब सोचो। अच्छा, दिखाओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ। लाइन नंबर 7 में मैं बोला था वो प्रिंट एलन नहीं होगा, प्रिंट होगा। प्रिंट एलन मतलब प्रिंट टू न्यू लाइन। ठीक है, फिर चलो
थोड़ा सोचो, ये ऐसे लेके सोचो, क्योंकि कल हम लोग पूरा दिन मतलब पूरा जो क्लास है ऐसे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन हम लोग सेलेनियम स्टार्ट करेंगे। अब बाय द वे कोर जावा का जो सिलेबस है, कोर जावा का जो है वो ख़त्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। देर इज़ नथिंग इन कोर जावा विच कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, नथिंग एल्स। तुम्हें ऐसा कुछ है नहीं जो पता नहीं है जो इंटरव्यू में पूछने वाला है। ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है आज, ठीक है। चलो, थैंक्स। हाँ, वही बोल रहा है, करेंटली वर्किंग ऑन जावा विथ सेलेनियम। कल ही इंटरव्यू है, तुमने बोले थे नेक्स्ट वीक। ओके फाइन, तो ठीक है फिर देखो तो क्या कैसे क्वेश्चन कर रहा है वो सिर्फ कल होगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, ठीक है। कल क्लियर होगा नहीं। हम लोग मास्टर कार्ड को थोड़ा सा टारगेट करेंगे। आज क्या है 23, ठीक है। तो कल क्या हुआ, कल हम लोग ये लॉजिकल थिंग्स करेंगे, लॉजिकल चीज़ें करेंगे। ऐसे पैटर्न प्रिंटिंग, सारे पैटर्न प्रिंटिंग कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग रिलेटेड जो भी है, दो चीज़ पूछता है इंटरव्यू में, स्ट्रिंग रिलेटेड एंड पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। कल नहीं होगा, कल कैसे होगा? कल मैं पूरा ये जो पैटर्न प्रिंटिंग है, ये जो लॉजिकल थिंग्स है वो कंप्लीट करेंगे हम लोग, लेकिन कल इंटरव्यू थोड़ी ना रात को है, तो सुबह होंगे ना। हाँ, तभी हम लोगों का क्लास 7 बजे से है, 4 से 5 कैसे होएगा? तो अगर ये वाला तुम्हारा प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा हो गया लेकिन देंगे नहीं इतना इजी, ठीक है। बट you just learn the all the what I say that concept of जावा, कोर जावा, वो तो सब कंप्लीट हो गया। वो क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? वो तो पढ़ो, वो आज रात भर बैठ के पढ़ो। और मैं सुनना चाहता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, मैं ये जो सेलेनियम रिलेटेड या फिर एपीआई टेस्टिंग रिलेटेड या फिर अदर्स जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो कोर जावा रिलेटेड है, ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। जो भी कंसेप्शन है तुम्हारे पास, जो भी मैंने पढ़ाया, वीडियोस को देखो, बार बार वीडियोस को देख के उसको रेडी करो। समझ में आ रहा है ना? तो कोडिंग प्रैक्टिस करो अभी, और वेट मत करो, कोडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओ वो सब होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सीखना है तो मतलब सी फुल टाइम, ये तो कॉलेज नहीं है ना, फुल टाइम हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज तो नहीं है ये। तो वो ऑफिस का काम भी रहेगा, तुम्हारे फैमिली का ये भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बाद भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। अभी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ कब सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो। मैं जैसे रात को मैं बैठ, क्या डिजिटल? अच्छा, फुल क्रम नहीं, फलक्रम डिजिटल है वो, फलक्रम डिजिटल, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो लोग थोड़ा कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे। बट डोंट वरी, कल अगर नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, ओके, क्योंकि तुम सीख रहे हो अभी। बट ट्राई टू आंसर द जावा कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग्स, एब्स्ट्रक्शन क्या है, इंटरफेस क्या है, एब्स्ट्रक्ट क्लास क्यों यूज़ होता है, ठीक है।
मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों पॉसिबल नहीं है जावा क्लास के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है किसमें, इंटरफेसेस में, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब तुम्हारा हाँ इनहेरिटेंस वो, और तुम ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये प्रॉपरली टर्मिनोलॉजीज ना करेक्टली बताओ, ओके। ठीक है चलो, बेस्ट ऑफ लक। प्रीतम तुम्हारा कुछ आया क्या? वो ज्वाइन हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा गौरव से मुझे एक बात करना है, मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है, वो पीडब्ल्यूसी में था लेकिन वो मास ले ऑफ हुआ ना, एक पूरा टीम को बिठा दिया, मतलब बिठा दिया इन द सेंस सैक कर दिया, हाँ फायर कर दिया। तो बहुत ही अच्छा ऑटोमेशन में, बहुत ही अच्छा ये है, बंदा है। हाँ उन उससे मैं ये करता हूँ, मैसेज करता हूँ उसको। ठीक है, ओके फाइन, चलो